Hi guys, how have you been? No, actually, how have you been? आज ना I want to talk about forgiveness. It's something that I've been thinking about for quite some time now, and I want to know your perspective, and I want to share my perspective. What is forgiveness to you? Like, when someone does you wrong, how easily can you forgive them? Are you still holding grudges against people who did you wrong years back? And by people, I mean sometimes your loved ones also, your parents, your teachers, your childhood friend, your siblings. We hold grudges against people. Sometimes it's because of some fault of theirs, or sometimes it's just normal, mundane things that we remember years later. Someone did something and then we just remember it and we hold it against them. And I understand because it's something that could have hurt our inner child deeply. But then we also have to realize, did they do it intentionally to hurt us that much? Or was it a consequence and they did not think about it? Yes, it's important that when someone repeatedly makes a mistake, we need to understand and build a boundary to protect ourselves. And that boundary can exist even when you forgive someone. You can forgive someone and still have boundaries. That forgiveness is for you more than it's for them. That forgiveness is to free yourself from that pain that you went through probably ages ago or even days ago. Kabhi kabhi, when we hold things against people, we really let go of relations that are very special to us. या फिर उसमें कोई एक ऐसा ब्रेक लग जाता है जो उसके बाद में थिंग्स डोंट गो बैक टू हाउ दे यूज्ड टू बी एंड इट्स बिकॉज हमने एक ग्रज होल्ड करके रखा है. We don't have to necessarily be that close to them, but when we choose to forgive, we say that I still acknowledge what you did was not okay, but I choose to move on from that. I choose to realize that I'm not going through that anymore. I'm no longer in that time and space where I'm going through that situation, and so I can forgive. I'm over that. And now, whether you choose to keep that person in your life, depending on that mistake, depending on what they did, that's up to you. But forgiving is important. Like, even if it's that ex who cheated on you 5 years, 10 years back, sometimes we still talk about that person. Like, they did us wrong today. हमारे अंदर अभी भी वो एंगर है, वो गुस्सा है, उसने वो किया एंड वो सही नहीं हो जाता है जस्ट बिकॉज वो चीज़ पास्ट में चली गई. पर हम माफ़ क्यों नहीं कर सकते? अभी गोइंग थ्रू दैट टुडे, हमने उससे सीखा और हम आगे बढ़े. आप ये एक्नॉलेज कर सकते हो कि वो एक्सपीरियंस ने आपको ग्रो किया है. यू डोंट हैव टू गो बैक टू देम, बट यू कैन स्टॉप टॉकिंग नेगेटिवली अबाउट देम और टॉकिंग अबाउट देम एट ऑल. लिमिट कर सकते हो उससे. जिस चीज़ को इतना टाइम हो गया है, वी कैन लेट दैट गो समटाइम्स. कहाँ जाना है वही सब बारे में बात कर करके. वेयर आर वी गोइंग? अपना पीस ऑफ माइंड बचाओ. वाई? अगर स्पेशली अगर उन्होंने आपको जान के हर्ट किया, रिपीटेडली हर्ट किया, तब तो लेट दैम गो यार. क्यों क्यों रखना है? यू आर स्टिल गिविंग देम एनर्जी. अगर हम आज भी उनके बारे में कंसिस्टेंटली बात कर रहे हैं, वी स्टिल टेक देयर नेम, हम उन्हें अभी भी अपनी एनर्जी भेज रहे हैं. और टाइम टू टाइम हाँ, हमें बात
करनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक हमें ऐसे बिहेव करने की ज़रूरत नहीं कि हमारे साथ तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वी डोंट हैव टू लिव इन दैट सॉर्ट ऑफ डिनायल। लेकिन आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ा जा सकता है। अपने किसी एक्स पार्टनर, एक्स फ्रेंड, एक्स कलीग, किसी के भी बारे में सोच रहे हो तो दिमाग में सिर्फ बुरी मेमोरीज मत सोचो। अगर आपका टॉक्सिक से टॉक्सिक एक्स भी था तो आपने उसके साथ कुछ तो अच्छा लिव किया है। थिंक ऑफ द गुड टाइम्स और ये रियलाइज़ करो कि हम जिन चीज़ों के थ्रू भी गुज़रते हैं ना कहीं हमारा पास्ट करना होता है। जो हर्ट हमें मिली है वो हमें हमारे बैड पास्ट कर्मा की वजह से मिली है। और वो इंसान के साथ हमारा एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था जो वो फुलफ़िल करने के लिए आया था। जो भी हमने किसी पास्ट लाइफ या ये लाइफ या कभी भी किसी को भी कुछ जो बुरा कॉज किया वो काट करके वो इंसान चला गया कि उसने हमें हर्ट किया। इवन व्हेन वी लाइक कि नहीं हम तो बस अच्छे थे किसी के साथ, ठीक है। वो आया, उसने आपको दर्द दिया एंड दैट पर्सन लेफ्ट यू। दैट वाज टू क्लेंज यू। स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल होने लगे थे तो ऐसी चीज़ें कई बार होती हैं ताकि हमें क्लेंज और प्योरीफाई किया जा सके। हम अंदर से बहुत प्योर हैं। हमारा जो एसेंस है वो हर किसी का प्योर है, बहुत प्योर है। लेकिन हम उसे बाहर से जिस दुनिया में हम रहे हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसने कहीं ना कहीं वो उसे पल्यूट किया। जैसे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं वैसे इस तरह से हमारा जो सोल होता है ना उस पर जो माइंड और ये सारी लेयर्स जो लगी होती हैं ईगो की और जो भी हम सोच रहे होते हैं, ये लेयर्स में जो गंदगी आती है वो साफ़ होती है इससे। सो whoever came and hurt you on a soul level they did you a favor। और इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि उन्होंने आपके साथ कुछ बहुत बुरा किया तो आप जाके यू मेक थिंग्स ओके विद देम एंड यू गो बैक टू अ टॉक्सिक पार्टनर। लेकिन रियलाइज़ करो कि ऑन अ कार्मिक लेवल वो शायद इंटेंशनली कॉन्शियसली नहीं जानते थे और उनके सोल ने आपके सोल की हेल्प करी और उनके सोल को थैंक करो। स्टॉप ब्लेमिंग देम और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ इफ़ यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन, इफ़ यू आर ट्राइंग टू बिकम बिग इन एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। अपने करियर में पढ़ाई कर रहे हो, आगे की लाइफ जीना चाहते हो तो पास्ट के साथ एक एक्सेप्टेंस होनी पड़ेगी। यू हैव टू बी ओके विद व्हाट हैपेंड टू यू। पीपल कैन डू हीनियस बैड ईवल थिंग्स। पता है जैसे अगर आपने महाभारत पढ़ी, सुनी या देखी है तो द कौरवास उन्होंने द्रौपदी माता को डिस्ट्रॉय करने की उनकी सारी कोशिश की थी। लाइक पूरी सभा में उन्होंने क्या कोशिश की थी, चीरहरण करने की, कि जो उन्होंने कपड़े पहने हुए वो हटाने की कोशिश की थी इन ऑर्डर टू इंसल्ट हर एंड ऑल द पांडवास। यू नो द फर्स्ट थिंग कृष्णा सेड टू हर इज़ टू द्रौपदी माता वाज सबसे पहले अपने मन में उन्हें फॉरगिव कर दो। उन्होंने गलत किया है और उन्हें अपनी गलती का कर्मा मिलेगा और मिला। गॉड इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। इफ़ एनीवन हैज़ डन यू रॉन्ग, जो भी किसी के भी साथ गलत करता है, जस्ट इमेजिन अ पेरेंट और उनके 2 बच्चे हैं और एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के साथ कुछ गलत किया, दैट पेरेंट विल सी टू इट, वो इस बच्चे को डांटेंगे, पनिश करेंगे, इस बच्चे को जस्टिस मिलेगी। लेकिन ऑन अ सोल लेवल दे विल नॉट स्टार्ट हेटिंग देयर सिबलिंग। आप इसे ऐसे समझो कि सोल लेवल पे कोई भी आपका दुश्मन, आपका एनिमी नहीं है। सो द ओनली थिंग दैट हेटिंग देम और होल्डिंग समथिंग अगेंस्ट देम इज गोइंग, व्हाट इट्स गोइंग टू डू इज़ वो आपके ऊपर एक एक्सेस वेट, एक बोझा डालने वाला है विच इज़ गोइंग टू होल्ड यू बैक। उन्हें फॉरगिव कर दो अपने मन से। आपको उनके साथ कुछ गलत करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट गॉड। अपनी कोई प्रॉब्लम है, आप बहुत हर्ट हो, गिव इट टू गॉड ऑनेस्टली और ख़ुद को फ्री कर दो उस चीज़ से।
या आई थिंक अगर हमें किसी को फॉरगिव करना है और हम नहीं कर पा रहे हैं तो बस भगवान को दे दो, क्योंकि अल्टीमेटली सोल लेवल पर हम सब एक हैं, हमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम किसी इंसान को हेट कर सकते हैं बट हमारी स्पिरिट में कोई डिफरेंस नहीं है, हम उसे हेट नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने कोई एक्ट किया जो कि ख़राब था हमारे साथ, ठीक है, हम एक डिस्टेंस बना के चल सकते हैं अपने को सेफ रखने के लिए, ताकि हमें उस चीज़ के साथ दोबारा नहीं गुजरना पड़े, लेकिन उन्हें माफ़ कर दो। टेक टाइम, एक दिन में नहीं करो, लेकिन करो और अपने पर उस ध्यान को वापस डालो। एंड यू विल सी कि ये सिंपली इतना सा करके आप अपने को स्पिरिचुअली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाओगे, अपनी रिलेशनशिप आप गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ में कितनी ज़्यादा क्लोज पाओगे इसके बाद में। एंड यू विल सी, एक बार वो सरेंडर करने लगो ना तो समझ में आ जाता है कि कैसे भगवान आपके लिए एक्चुअली होते हैं। जब मैं फॉरगिवनेस की बात कर रही हूँ ना, जब हम दूसरों को फॉरगिव कर रहे हैं, ये सारी बातें सबसे ज़्यादा किस पे अप्लाई होती हैं? खुद पे, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा हर्ट खुद से होते हैं, सबसे ज़्यादा हर्ट खुद को ही करते हैं। हम अपने साथ कितने बार ऐसा होता है, वी डोंट टेक अ स्टैंड फॉर आवरसेल्व्स, या फिर हम अपने को कुछ प्रॉमिस करते हैं कि हम सुबह 5 बजे उठेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, या हम वर्कआउट करेंगे, या हम कल से स्मोक नहीं करेंगे, जो कुछ भी। एंड सो मैनी टाइम्स वी ब्रेक दोज प्रॉमिसेस। क्यों? क्या हमें पता नहीं है कि हम स्मोकिंग अच्छी चीज़ नहीं है, कि हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, कि हमने विलिंगनेस नहीं है, हम खुद के साथ गलत कर रहे हैं ना। लेकिन अगर आपको कल को स्मोकिंग छोड़नी है तो आपको सबसे पहले तो खुद को फॉरगिव करना पड़ेगा कि पहले जब मैंने चाहा था तो मैंने ये नहीं किया था। क्योंकि अगर आप अपने को फॉरगिव नहीं करोगे तो आप ये मान के चलोगे कि आप खुद को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, एंड यू विल नॉट इवन गिव इट अ ट्राई। किसी भी चीज़ में अगर आपको सक्सीड होना है तो आपको पास्ट मिस्टेक्स को, खुद की भी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली खुद की, उन्हें फॉरगिव करना पड़ेगा। सो सामने वाले को फॉरगिव करो, खुद को फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। ये आज का मैसेज है। I will see you in the next video. Take care. Bye.